आरंभ मुंडा देखुन हिमगिरी पर्वत हेमगिरी पर्वत 772 नदी 7 समुद्र मोर कोटि कोटि प्रणाम जणाइबा परे तांकरी पादरे शरण सह ए जीव जगत पक्षरु तांक निकटरे मोर एतिक मात्र निवेदन रहिला जे ए जीव जगत को अन्याय करे केभेले दुष्टमती देव नाही यही मोर तांक निकटरे बारंबार प्रार्थना एवं आपण निकटरे मोर कृतज्ञता मोर कहवा पूर्व प्राय 5-6 जन वक्ता आपण को ये वरुण राजा संपर्क एवं शरीर ब्रह्म ज्ञान तत्व को भेद करी जेते प्रकार व्याख्या आपण मानक जणाई दे गले ताहाको केउ करी भाव किभली मति रे आपण माने हृदयगम करिसंती आपण माने ही जानो आउ जे किछि बाकी अछि आपण मानक कहि मु संतुष्ट करिबी ताहा मोर मन भितरे कहीं के आसुनी कारण 33 वर्ष भितरे गहन दल ओडिशार बाहर एही परी अनेक कार्यक्रम करी आसुथिला भितर जे कोठा को कोटि कोटि कल्प बीती जाइथिले मध्य ए सारा ब्रह्मांड रे 33 कोटि देवता को नहीं ए 56 कोटि जीवजंतु भितर के भेले आलोचना हुए नाही किंतु आज को 33 वर्ष धरी गहन दल आपन को मुखानुमुख भाव ए जीव परम संपर्क जीवर गति एवं आत्मार मुक्ति निम्न ए जीवर परित्राण क्षेत्र रे समस्त कथा बुझी सारिला परे जदि मन आपणकर ठीक भाव में गति करि पारु नै ए धर्मीय कार्यक्रम ऊपर अन्यास राति अनिद्रा होई एठारे बसवा असंभव आपण मानक ता ठीक हुए नै बोली करी गुरु पूर्व गुरु मानकर मतवाद तथा आज मु आपण मानक किंचित स्वल्पीय भाव से ब्रह्म ज्ञान तत्व भितर अल्प किछि कहि मोर वक्तव्य शेष कर देबी मु एठारे बसिथिला भितरे उत्सव साउ तथा गहन दलर सभापति भ्रमरवर बाबू से जो निशब्द ब्रह्म कथा कहथले ता अति ही उच्च कोटिर कथा
ଯାହାକୁ ଦେବତା ମାନେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ଶୟନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ବି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କିପରି। କିନ୍ତୁ কথୋପକଥନ ଭିତରେ, ଏ ଅମୃତ ଲହରୀ ଭିତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଙ୍କୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେତିକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତା ବେଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ନିଃଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥିର, ଅବିନାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବିନାଶ ହୁଏ ନା। ସେଇ ନିଃଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି, ଏବେ ଆମର ଉତ୍ସବ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଳୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଳୟର ଉପରେ ଏକ ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ବା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଳୟ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ବାଲି ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଯେତେ ଛୋଟ ବାଲି ବା ଅତି ନିମ୍ନ ବାଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଇଭଳି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କେଶ ଅଛି, ଏ କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଭାଗ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କେବେ ହୁଏ ନା। ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ଜପି ତପି ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଏପରି ତାକୁ କେହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ଏବଂ କିପରି ଥାଏ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଥାଏ, ତାହା ବେଦରେ କହୁନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା କେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ କଥା କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି କଣ, ତଥାପି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଏ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଳ କରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମାରୁ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ବାହାରୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି। ସେ ଯୋଉ କିଞ୍ଚିତ ଆଖିର କେଶ ଠାରୁ ଯିଏ ନିମ୍ନ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନରେ, ନିଶ୍ଚଳ ଆସନ ମାନେ ଏକଦମ ସ୍ଥିର ଆସନରେ ବସିକିରି ସେ କାହାକୁ ଲୟ କରନ୍ତି, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଗୋଚର। ସେ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନରେ ବସି ସେ କାହାକୁ ଲୟ କରନ୍ତି, ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର କଥା ନୁହେଁ। ଲୟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଏ ଶରୀର ଭୋଗରେ ସେ ବସିଥା। ସେ ଏହିପରି କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ବସିଲା ପରେ, ମହାକଳ୍ପ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅଲୌକିକ ଆଚମ୍ବିତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା କଳ୍ପନା କରିବା ବା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ ବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ସେ ଆଚମ୍ବିତରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିପରି ନା, ତାକୁ ଉତ୍ସବ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ ନିଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପରେ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଚମ୍ବିତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଆଚମ୍ବିତ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଆଚମ୍ବିତ ବ୍ରହ୍ମ ଶତରୂପା ନାରୀ ରୂପେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖାଦେଲା। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଆଜି ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୀଠରେ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ବହୁଦିନ ଧରି ଗହଦଳରେ ବସା ଉଠା କରୁଥିଲା ବେଳେ
ये कथा आपने शुणी नथिले आज आपको अल्प किंचित मात्र कही मोर वक्तव्य शेष करी कारण गुरु कहले किसी देवा तेणु मु गुरु नुहे मु एपर्यंत शेषत्व ग्रहण करी मो दुर्भाग्य से तांका नाहला शतरूपा नारी से आचंबित ब्रह्म एक ज्योति स्वरूप देखा देले कहार कल्पना ना स्वयं ब्रह्मंकर कल्पना शतरूपा नारी सृष्टि करबा परे माने युगानु क्रमे से सृष्टि होला परे तापरे से आचंबित नारी का धरि एक अकलित ब्रह्म सृष्टि होला उभयंक देह ये ब्रह्म जो ज्योति स्वरूप आसला तार नाम है जोग माया एवं जोग माया स्वयं ब्रह्म उपरु तल को खसुथिबारु से बुली पड़िबारु अरेह मंडल सृष्टि है अरेह बोलते बुली पड़िला ब्रह्म बुली पड़िबारु ताकू अरेह मंडल बोली कुआगला बा अरेह ब्रह्म बोली ताकू कुआगला स्वयं ब्रह्म बुली जिबारु ताकू अरेह ब्रह्म बोली कुआगला सेई अरेह ब्रह्म बुलिबारु एक अनंत नागर दृष्टि गोचर को आसिला से बुलिबारु पवन सहित एक अनंत फेणार बा जहाँ को कहती कर्कट नागर बा सप्त फेणीर सृष्टि देखा मिला से पवन आकार रे अण अक्षर भेदरे अण अक्षर भेदरे अनंत सृष्टि होई गले सेई अनंत देहरे से जो अनादि पुरुष आसिकरी वास करी चतुर्धा मूर्ति नारायण रूपे देखा देते एवं सेई चतुर्धा मूर्ति नारायण सप्त फेणारे गति करिथिबारु क्षीर नामक एक समुद्र रे तांकु देखिबाकू मिलिला बुझी हो ये सृष्टि कथा दूरे थाउ तांकु देखिबाकू मिलिला परे से जो अनंत नारायण दिए से जो दुई गोटी नारी आसले जनक ना होती शतरूपा अन्यटी नाम होती जोग माया यही जोग माया देहरु स्वयं ब्रह्मंकर प्रेम कल्प तरु तीनोटी पुत्र जात हेले जोग माया गर्भरु प्रथम पुत्र नाम हला ब्रह्मा द्वितीय पुत्र नाम हला विष्णु तृतीय पुत्र नाम हला महेश्वर स्वयं ब्रह्म दिए आउ दृश्यमान हेबाकू देखा देले नाही रहिले शतरूपा जोगमाया क्षमा करिए रहिले जोगमाया एवं ये तीनोटी पुत्र जहां को ब्रह्मा एवं विष्णु एवं शिव बोली कुआगला सेई ब्रह्मा विष्णु शिवं को नहीं ये सृष्टिर किपरि सृजना हबो सेई कथा से चिंता कले चिंता करिबारु ये जो अच्छी चिंता करिबो अनादि अनादि बाटरे स्वयं ब्रह्म एवं शतरूपा बाटरे रहिले जोगमाया तांको कोड़े तीनोटी पुत्र ये तीनोटी पुत्र को कौन करिवे एथिपाई से कल्पना करिबारु मु एठी टिके छाड़ी दे जाउची क्षमा करिए जो मैंने ज्ञानी गुणी लोक थे से मो कथा धरी पारे तांकरी कल्पनारू पुणी तीनोटी नारी सृष्टि हेले जनक नाम है पार्वती अन्य जनक नाम है सावित्री आउ जनक नाम है लक्ष्मी यही तीन जन से ऊपर मालिक देहरु से पूर्ण कला अंग देहरु किछि अंग कला धरी उदयमान है एवं यही मान देहरु से ऊपर देहरु
जे अक्षर देहरु आकार हेबारु एमाने आकार हेबारु जेतिकी समय ता भितर गोटे मक्षर सृष्टि दात कले सेई मक्षर त्रय बीज हैला से त्रय बीजरु ए अक्षर सब सृष्टि हे गला से अक्षर हैला 50 गोटी मूल पदार्थ रहिला 16 गोटी ए 34 अक्षर रे 34 युक्त 16 मिसिले हेबो 50 एवं से 50 अक्षर ऊपर छंदी 54 56 देख हेले से जो अनुसार विसर्ग चंद्र बिंदु जीव परमर कथा यह मिसिक 56 अक्षर है 56 अक्षर भितर सार अक्षर है 50 गोटी एवं से 50 गोटी अक्षर भितर 34 अक्षर होती सर्वश्रेष्ठ आउ जो 16 अक्षर रहिला से किपरि रही कौन रही अन्य एक मेला मुझे आपण मान कहि ये जो 34 अक्षर भितर 16 चक्र भितर उत्तम अक्षर को आनी 34 अक्षर महाप्रभु माने परिदे गले एवं सेही 34 अक्षर रे नाम बही आसुअछि अण अक्षर से जो नाम कथा अनामर नाम होइला जात नाम एकाक्षर अटे उचित एकाक्षर त्रय तत्व हैला ता तहु 16 नाम जन्मिला तारी देहरु से जो एक अक्षर कथा कहते स्वयं ब्रह्म देहरु यही नामटी सृष्टि हेका तळकु खसी आसिला तळकु खसी आसिला परे 33 गोटी देवता तारी भितरे रहिले अक्षर ब्रह्म भितरे मु आपन को कहली 34 गोटी अक्षर अछि सर्वश्रेष्ठ अक्षर से जो 33 गोटी देवता स्वर्ग रे थांती बिली आपन माने कहउतंती से 33 गोटी देवता से नोती 34 गोटी देवता टिके मोर कहिबार गुष्ठता रहिबो अनेक प्रश्न आसी पारे किंतु मु एक शास्त्र शून्य संहिता देहरे एकता देखिछि एवं ताको पाठ करी मु ता भितर जो अक्षर को आनी कि आपन मान को कहूची से स्वयं ब्रह्म को नै कि 34 अक्षर अछि जीव को नै कि 33 अक्षर रहिला स्वयं ब्रह्म को नै कि 34 अक्षर हैला ब्रह्म विद्या महाविद्या विद्या परम दुर्लभांग ब्रह्म संपर्क रे जहार ज्ञान तो सारा अछि से ही मो कथा बुझिबो अक्षर भेद को जे न जानछि से भक्त भितरे गणति हेई पारे ना अक्षर ब्रह्म संपर्क रे जे किछि न जानिछि गहन दल आसन रे बसिबा तार वृथा हे जीव समय नष्ट करी करी शेषे मृत्यु वरण करिवो लाभ किछि पाइबो ना स्वयं भगवान आसिले तापर भी मृत्यु अछि बोली कि शास्त्र कहूछि किंतु तांका मृत्युर वाद विवाद भितरे तार किछि साक्षात्कार अछि किंतु ए स्तर भितरे जे मृत्यु करे ताकू कोन कुहा जाय से कथा शास्त्र पढिले आपण माने जानिबे मु एते कथा कहला मत संभव नाही तेणु से जो अक्षर ब्रह्म विषय से कहउछंती यही अक्षर ब्रह्म को नहीं ये रूप प्रकाश तुम्हें शरीर धारण करिछ एवं मु भी शरीर धारण करछि ऊपर जो 33 गोटी देवता रहिले तांके 34 गोटी बोली करी कहा जायछि शून्य संहिता पदरे सेई 34 गोटी देवतांक भितरे अष्ट नृपति ही अछंती जहाकु सर्वप्रथम से सृष्टि करिसंती ए जोगमायंक ठारू आरंभ करी अर्धचंद्र भितरे से जो अष्ट नृपति रही तन्म मध्य वरुण राजा अन्यतम आनंद एक बार हरिहरि
यही 33 कोटी बा 34 कोटी देवता को ये सारा ब्रह्मांड आकाश ठारू 21 पुर 14 ब्रह्मांड नवखंड मेदिनी सप्तदीपा मही को संपूर्ण भाव स्वयं नारायण चतुर्धामूर्ति जे क्षीराब्दी शयन रे वास करितांती आउ 7 समुद्र होउची लुणा 8 समुद्र जहाँ कहती से हूँ क्षीराब्दी शयन विष्णु क्षीर सागर भितर से थांती जहाँ आपण सभापति आंटलाटिक महासागर बंग महासागर भारत महासागर सब कहीगले केते सागर कथा से 7टी जाक सागर होती लुणी किंतु क्षीराब्दी शयन सागर भितर जो परम विष्णु रही महाविष्णु जहाँ कहते रही से एक समुद्र 7 पर 8टी समुद्र एक गुप्त स्थान भितर से समुद्रटी अच्छी से अनंत नारायण विष्णु परिप्रकाश से अनंत नारायण विष्णु को ठारू ए सारा ब्रह्मांड जहाँ किसी सपना कोटी जीवजंतु सकल ग्रह जहाँ देखुंट आप कीट ठारू मुट पर्यंत सबू से सृष्टि होई कल्पनारू ये भितर से जो परम ब्रह्म हरिक्रियाब्दी शयन अच्छा जानिबाकु हेले चिन्हिबाकु हेले ये ब्रह्मर भेद संपर्क रे किछि जानिबाकु पड़िबो केमिति जानिबाकु पड़िबो ना ये शरीर भितरे मन आत्मा जीव एवं परम ए जीव परमर मिलन भितरे जहाँ को आपन को उत्सव बाबू कहते जीव परमर मिलन करे उभय शरीर एकत्रित हो गला परे निशब्द क्षेत्र रे गति करुथिला समय निज मुख को निजे देखि पारिबो तुम मुख द्वारे तुम पिठी सहित सब किछि जानि पारिबो एवं ये जो चारि दिगरे कोन हो स्वर्ग मोक्ष पाताल रे सब किछि की गोचर ही पारिबो आपनकर जाई पारिले तो गुरुंकर दया थिले तो तेणु जेतिकी समय ए महाघोर कली रे आमे माने ए सारा सृष्टि रे जन्म लाभ करी जेतिकी समय आम पाखरे अछि सेतिकी समय निजुकु निजे भाबी हेले ये सनातन धर्म क्षेत्र रे ब्रह्म ज्ञान तत्व को नहीं साक्ष्य एवं लक्ष्य प्रत्यक्ष समस्त कथा तुम मन तुमको ही बुझाई देव ए चतुर्दश ब्रह्मांड रे भूमिबा किछि लाभ नाही जदि मन तुमर बुझिति सब किछि कथा तुम निकट को गोचर हेबो किपरि छोटिया गपटिए कहि वक्तव्य शेष करूछि मोर बापा एवं मोर माँ मोर जन्म हेबा पूर्व मु तांकु देखि नथिली मो मार घर केउ स्थान रे मो बापांकर घर केउ स्थान रे बापा जानी मो घर भुवनेश्वर मु जहाँ को हाथ धरी 16 कलश मारिकी बाहा हेली ता घर हूँ पुरी बयसर सीमा अनुसार विवाह बंधन कार्यक्रम मोर बापा माँ को सहधर्मणी हिसाब से निज घर को आनिले मो माँ जन्म हेबा परे शाशु घर को आसवा भितर से कौन करुला केमिति थिला कौन खाउला कौन कौन देखिला तांकु ही गोचर स्वामी आगे जिते कथा कहले स्वामी तो देखी ना ना साक्षात हौ तो कथा को मानुची ग्रहण करुची बापा मोर जन्म हेबा परे विवाह बंधन पर्यंत
से कौन करते बापा ही गोचर कौन देखले कौन नाइले कौन खाइले कौन पिंधिले कोठी शोइले कोठी बसिले कौन कले कौन ना बापू कहीं गोचर विवाह बंधन परे जहा किछि घटिला से कथा मो बापा जानी कि मोर माँ जानी समय अनुक्रमे धीरे धीरे बयसर सीमा बढ़ी आसिले घरे स्वामी स्त्री भितर अनेक कजिया थिले मध्य केते दृष्टांत केते कथा से कथा को मु आलोचना करिया को जाऊ नहीं समयर सीमा अनुसार तांको निकट जो पुत्रटी जन्म है सेही पुत्र निज पड़िशार दुई तीनोटी घर पर जनकर एक झील थिला से झील बेले बेले आम घर को आसे आम घर को आसु आसु माँ नजर पड़ा माँ कहले ये बोहू कले भल हाँ एक कथा तांको बापा आगे मो स्वामी आगे कहले भल झीटे ताकू टिके जदि मो पुओ सहित बाहाघर हाँ केमती कले बड़े कौशल करदे हे तो मो घरटा शांति हो जाता मो घर किसी असुविधा हाँ ना भल बोटी हाँ बाप जहा करुला पुओ बो आसी से कले से लक्ष्य रखिकी मन स्थिर भाव निज जीवन कहानी निजकू जदि निजे संजोग करिव धर्म को दूरे नाही तुमे सब कथा पाटी रे धरुच सब कथा गाउच सब कथा बजौच किंतु ता भितर असली जिनिस को गोटा तुमे निजे कही होउच किंतु जानी पारुन जे एही ब्रह्म यही नाम यह स्मरण कले चिंतन कले भजन कले मनरे नेले आत्मारे घोषिले ए जीव मुक्ति पाइब तेणु समुद्र दिन को दिन प्रबल रु प्रबल हेब जहा मोर पूर्व पुरुष माने मागी नहीं कलिर छाया को देखिक तेणु दुष्कृत को किपरि विनाश करिवे तेस्तरी भाग जल जदि सारा ब्रह्मांड रे पूरी रही ताले 27 भाग मात्र स्थल आपण मानक मु सर्वप्रथम रे कहली हेमगिरी पर्वत माने जोटी हिमालय से हिमालय जदि तरलिबो ये 762 नदी रे जदि एमती आकाश फटा ये तो कहते आकाश फटा कथा कोटि मु शास्त्र पढ़ी ना भीषण वर्षा हला लोक मैंने तल प्रतल ही पारे ना गोटे खंड प्रलय है 1900 मसीह शुक्रवार पड़ा खंड प्रलय बोली कह जाए किंतु सका देखिली कि खबर कहा कि महाप्रलय कहा कहुए खंड प्रलय कहा कहुए प्रलय कहा कहुए महापुरुष सदानंद दिव्य ज्ञान दृष्टि स्थाने स्थाने मोर खंड प्रलय होइब कहना महाप्रलय कथा मुझे शास्त्र अनुध्यान कर भर कहूँ भल भाव ज्ञान एवं ध्यान लक्ष्य करी कर केते दिन एमती गालुआमी बेहमियान करी तुमे माने चलिबो ए संसार को बुड़ेइबो ए संसार ताकू संपूर्ण कला करी देले तेणु ए संसार को कला करी दृष्टि अनंत नारायण विष्णु जम्बूद्वीप स्थान एक दरिद्र परिवार
जन्म लाभ करे बोलिकरी पूर्वरु कथा देइछन्ति एवं ए संपर्क में सभापति महाशय एबे गोटे कहते राधा रानी पचारती कृष्ण को चाहिए गोटे कहते तेणु किए केते प्रकार धर्म संबंधी कथा को कही निज पेट पोषा निजर बहादुरी देखा निजर ज्ञान को बड़ बोली मन करवा तेणु से जो प्रभु आसवे पाखे तुम्हें आमे कौन कहवा गोटे पद लिखले मोहा मोहा ज्ञानी तपासे हारिबे श्रीमंत तपासे हारिबे श्रीमंत
ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କ ସଭାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଅଛି, 16 ମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱ 16 ମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଗିରିକ୍ରୋଟ ତଥା ମଧୁକ୍ରୋଟ ଅଦାଲତ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆକାରରେ ହେଉ ବା ମୌଖିକ ଭାବରେ ହେଉ ନ ଆସିବା ଭଲ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ବୁଝି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେଥିପାଇଁ ଗହଣ ଦଳର ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବ। ଯାହା କିଛି ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଘୋର କଳିର ସମୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲମଲ ହେଇକରି ଦେଖାଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମରୁ ଗହଣ ଦଳର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏ ଗହଣ ଦଳକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବେ ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିହିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ହେଲା ତାହା ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଦାଗ ବୋଲିକରି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଛି। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ଥାଏ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଳି ଯୁଗରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକରି ମନେ କର। ଯଦି କିଛି ଧର୍ମ ନିଜକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତାହେଲେ 33 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗହଣ ଦଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଘଟି ଯାଇଛି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେତିକିରେ ତୁମେ ପାର ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ ବୋଲିକରି ମୋର ଦୃଢ଼ ମତି। ଯେତିକି ଶୁଣିଛ ସେତିକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦାୟକ ବା ଜୀବନର ଗତିମୁକ୍ତିର ପଥ। କାରଣ ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ଦେଇନଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କାଗଜପତ୍ର ଭାବରେ ହେଉ ବା ମୌଖିକ ଭାବରେ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ କେଦାରେଶ୍ୱର ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଜେଲରେ ହୁଏତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଳିକରି ହୁଏତ ମୋର କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ମାର୍ଜିତ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ମତରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଯଦି କିଛି ଘଟିଥାଏ, ଘଟିଯିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବ। ତୁମର କିଛି ହେଇଯିବନି। ତେଣୁ ତୁମ କଥା ତୁମକୁ ଗୋଚର ଥାଉ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗହଣ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ 33 ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ ଭରି କଟି କଟିକିରି ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିଠିର କୋଳାହଳରେ ଟେଲିଫୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେବ? ରାତିରେ ଯଦି ମୋତେ ନିଦ ନ ହୁଏ, ମୋର ତ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ପତ୍ରିକା ଆଗକୁ ବାହାରି ପାରେ ନ ବାହାରି ପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଧେ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି।
तेणु से किसी कहूना ना किसी बाहर कारण तुम कार्यकलाप तुम निजे जानिच ना आउ ढेंकानाल कार्यक्रम जो होता नृसिंह दास पीठरे ता भल भाव में गति कर जो जहाँ कार्यक्रम होती भल भाव में अनुध्यान करे किंतु किसी मोर फल लाभ हुए ना तथापि शेष समय गोटे कथा कहूँ बुझ न बुझ पढ़ गीता रुचु न रुचु खा पीता गोटे छोटिया बही गीता जी तमें गहंदर बसिक शिखी जाइछ से गीता को पढ़िक निज मन को निजे बुझे निज मन एवं आत्मा को जीव परम सहित केमती मिलन करी निज कथा निज बारिदी को निजे घेना कर आउ गहन दलर कार्यक्रम उपरे हस्तक्षेप करने को चेष्टा करनी कारण विभिन्न लोकंकर विभिन्न मतवाद जो कहारी किसी क्षयक्षति हो ना कारण प्रथमे मुख्य को खोजे तेणु मु आग गला तमें जीव कारण मु निजे अनुभव कली लिंगराज मंदिर तेणु चिंताधारा जहाँ रही आपण दूरे धर्म बेलिक जो जोड़ी अक्षर तादे भल भाव अनुसंधान करी अनुमान करी अनुभव मृत्यु समय को जो पदार्थ जोगाड़ करके रखि तुम परम कारण है आनंद कबार कहबारे जदि किसी दोष त्रुटि थाए ये अधम को क्षमा कर आनंद कहीकि आपण मान विदाय नौ सभा भी स्थान भंग करा जाउछि।